Hello dear aspirants, I am Dilip Pandawal. I have completed my degree from NIT Jamshedpur in 2017. I teach physics for IIT JEE and NEET. Today's topic is kinematics. Before moving to the next theoretical and problem solving part, first let us analyze the syllabus of IIT JEE and NEET. The syllabus of IIT JEE and NEET is the frame of reference, motion in a straight line, position time graph, speed and velocity, uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity, uniformly accelerated motion, velocity time, position time graph, relation for uniformly accelerated motion, scalars and vectors, vector addition and subtractions, zero vector, a scalar and vector product, unit vector, resolution of a vector, relative velocity, motion in a plane, projectile motion, uniform circular motion. In this lecture, we will study the frame of reference, motion in a straight line, position time graph, a speed and velocity, uniform and non-uniform motion, average speed and instantaneous velocity, uniformly accelerated motion, velocity time and position time graph, relation for uniformly accelerated motion. What is motion? Motion क्या है? Motion is the change in position of an object with time. How we will say the object is changing its position? Suppose an object A is at this point, says x1, and after time t its position is at t2. Then we will say the object A is changing its position from x1 to x2, right? Then we will say the object is in motion. And what is kinematics? Kinematics is the study of motion of an object without considering its cause of motion. What does it mean? इसका क्या मतलब है कि सपोज ऑब्जेक्ट ये है और इस पे कोई फोर्स F लग रहा है जिसके द्वारा ये मोशन में है, and it is moving with a velocity of v. So we are actually studying the motion of object without considering the force F. समझ में आ गया? कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है सपोज F, और वो उस फोर्स की वजह से मोशन में है, लेकिन जो हम उसका मोशन का स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, हम फोर्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, राइट? नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक्चुअली व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सी, हमने मोशन को देखा है कि मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विथ टाइम, राइट? फॉर आवर कन्वीनियंट वी कंसिडर द perpendicular axis x, y, z and the point of intersection as origin. At any position P, say is the position of object A. So actually हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और वो मोशन करके किसी पॉइंट P पे एक्स वाई जेड पोजिशन पे पहुंचा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O और ये, राइट? अब हम इसे मेजर करने के लिए, हम इसका टाइम मेजर करने के लिए हम इस पे एक क्लॉक लगा देते हैं, है ना?
तब हम इससे वेलोसिटी मेजर कर पाएंगे। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रॉम ओरिजिन टू पी पहुंचा है, राइट। सो एक्चुअली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस constitutes three perpendicular axis, coordinate axis and a globe, right. Now अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन की बात करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट की रेफरेंस में बात करेंगे, या फिर हम किसी इस पॉइंट P से कोई पॉइंट Q के रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं, है कि नहीं। No, this is in 3-dimensional. For straight line motion हम कोई भी एक एक्सिस को कंसिडर कर सकते हैं। For motion in a straight line, when we are considering motion in any one axis, we are actually saying the motion in straight line, right. Suppose हम कोई एक डायरेक्शन एक्सिस लेते हैं, सपोज एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस के डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट। नो अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता हो गया। नो एक्चुअली सपोज हम ग्राउंड पे खड़े हैं, राइट, और एक कार मूव कर रहा है। एक कार मूव कर रहा है, राइट, विथ वेलोसिटी v. Then we will say, if you are saying a car is moving with a velocity v, then we are saying कि from this reference point the car is moving with a velocity v. If driver is sitting in the car और passenger is sitting in the car, तो ये क्या पैसेंजर के रेफरेंस में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है? नहीं, इसके रेफरेंस में कार रेस्ट में, क्योंकि वो कार में तो बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, वो कार के साथ ही में मूव कर रहा है। तो हम किसी एक इवेंट को हम डिस्क्राइब करना रहेगा तो हम उसके रेफरेंस में बात करेंगे, उस पर्टिकुलर रेफरेंस में बात करेंगे, समझे। जैसे कि आप एक बाइक से मूव कर रहे हैं, तो बाइक से कोई हम बाइक चला रहे हैं तो मेरे रेफरेंस में तो हम तो रेस्ट में है ना बाइक पे, लेकिन कोई एक स्टूडेंट है या फिर कोई आदमी पीछे खड़ा होकर ये देख रहा है तो वो बोलेगा कि ये वेलोसिटी v से जा रहा है। कोई हम किसी आदमी के तरफ जा रहे हैं तो आगे वाला आदमी बोलेगा कि वो मेरे तरफ वेलोसिटी v से आ रहा है। कोई पीछे में आदमी खड़ा है तो बोलेगा कि मेरे से वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक क्लियर है। नाउ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले कुछ चीजें, जो कुछ टर्म है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम दूरी भी बोलते हैं हिंदी में। डिस्टेंस इज द टोटल, डिस्टेंस इज डिस्टेंस क्या है? वो जो टोटल दूरी जो तय करेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो एक डिस्टेंस है। सपोज आप अपने घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक टर्निंग मिलता है, फिर यहाँ पे एक टर्निंग मिलता है, फिर यहाँ पे एक टर्निंग मिलता है, और फाइनली आप कोचिंग पे पहुँचते हैं। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे कि आप यहां से घर से निकले हैं कोचिंग के लिए, ठीक है, यहां से घर से आप निकले हैं कोचिंग के लिए, तो एक्चुअली डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन मिलाइए इस पॉइंट पे, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट. क्लियर? नाउ स्पीड. स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड इज द, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नो, वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? नो, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन हमें एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में मूव करना है. स्ट्रेट लाइन में हम या तो आगे जा रहे हैं या फिर हम पीछे आ रहे हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस पे क्या होगा कि सपोज हम t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर t2 टाइम में हमने यहां पे बैक आकर के d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2. ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? हमारा वेलोसिटी यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा? d1 अपॉन t1. और यहां पे मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैंने फर्स्ट में d1 ट्रेवल किया और मैं d2 बैक आ गया, तो d1 माइनस d2 अपॉन t1 प्लस t2, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा. ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नो, ठीक है. अब एक्सेलरेशन क्या है? अब एक्सेलरेशन क्या है कि एक तो है कि बॉडी जो है एक कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहीं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां पे हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे? 0 लेंगे. लेकिन वो कहीं वेलोसिटी मेरा चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बिटवीन देम. ठीक है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, यहां तक क्लियर है? नो, अब हम यहां पे कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि यहां पे जो बॉडी है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. एक्सेलरेशन क्या होगा? बॉडी का 0 होगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? हमने एक्चुअली देखा है
कि जो वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो सपोज एट t1 पे इसका पोजीशन क्या है x1 और एट t2 पे इसकी पोजीशन क्या है x2। तो v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। राइट, हमने एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी तो देख लिया। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। किसी पर्टिकुलर केस में v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, instantaneous velocity is the velocity of the object at a particular time. Velocity is the rate of change of displacement and instantaneous velocity is the velocity of the object at a particular time. So in this case v equals to del x upon del t when del t टेंड्स टू 0, v इक्वल टू dx अपॉन dt। एक्चुअली हम इसको ग्राफिकल नोटेशन से देखते हैं तो x t किसी पोजीशन पे वेलोसिटी जो है चेंज कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हम डेल टी ले रहे हैं, ये वाला केस, ये और चेंज क्या कर रहा है, डेल एक्स। व्हेन डेल एक्स डेल टी टेंड्स टू 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया। ठीक है, यहां से हम ये देखेंगे कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ये, राइट। नाउ for non-uniform motion, actually velocity is also changing, acceleration will be there. For non-uniform मोशन के लिए बॉडी विल मूव विथ सम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसका देखेंगे क्या है ये। एक्चुअली व्हेन वी प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एट t1 वेलोसिटी इज v1, t2 पे वेलोसिटी v2 है, t3 पे वेलोसिटी v3 है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है ये हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है वो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू डेल, इसको हम डेल v अपॉन डेल टी लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू
डेल वी अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। यहां तक क्लियर है। नाउ हम देखे हैं कि एक्सेलरेशन v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहां से हम एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये क्लियर है। और v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्लियर है। यहां तक ठीक है। नाउ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है ये हम देख लिए हैं। और हम कुछ केसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फिर पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे मूव करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। नो, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखें कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्म मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 के लिए हम लोग देखे हैं v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। इट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हम इसको कैलकुलस से देखेंगे तो डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी टी। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो x इक्वल टू वी टी प्लस सम कांस्टेंट से b, राइट। इसका क्या मतलब है कि फॉर ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू c देन v इक्वल टू c। हम इसका टाइम ग्राफ प्लॉट डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ये क्या पता, तो क्या दिखाएगा ये यहाँ पे x और यहाँ पे t का। तो एट t इक्वल टू 0 पे ये और जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी एट अ डिस्टेंस c पे है और यहाँ से इट्स मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक तो ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा केस क्या है कि ये बॉडी रेस्ट पे है। तो हमने क्या देखा है, बॉडी रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी 0 होगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू b, वेलोसिटी 0 है। कहने का क्या मतलब है कि बॉडी एट इनिशियली पोजीशन पे ये एट अ डिस्टेंस b पे है, ठीक है। या तो फिर ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इफ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट एट अ टाइम t पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, देन हम यहाँ इसको यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज कहीं वो मेंशन किया हुआ है कि एट अ डिस्टेंस b है और c है, तो हम यहाँ से एट अ डिस्टेंस इस पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। एट रेस्ट पे हो गया, एट मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ सम इनिशियल पोजीशन, ये हो गया विथ सम इनिशियल पोजीशन। और थर्ड केस है कि व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ इनिशियल पोजीशन ओरिजिन, तो इस केस में क्या होगा, c 0 हो जाएगा। तो ये मूव एक्चुअली ऐसे करके मूव करेगा, वेलोसिटी x t x इक्वल टू वी टी, इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। एक्चुअली दिस जो ये टेंजेंट होगा, जो एंगल होगा, ये क्या होगा, v होगा। x और t का ग्राफ बनाएंगे तो एंगल जो टेंजेंट जो होगा वो v होगा, इसका tan थीटा इज v, ठीक है।
हमने 3 केस देखा है। एक ये है कि मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ सम इनिशियल पोजीशन, दूसरा केस है कि वो बॉडी रेस्ट पे है एट एंड एट इनिशियली इट इज एट अ डिस्टेंस b। थर्ड केस है कि इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ इनिशियल पोजीशन एट ओरिजिन, यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की ये बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नो, हम फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करते हैं। यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड ए इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, ठीक है। हमने यहां हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, फॉर दिस केस हम ये देखते हैं v इक्वल टू ए इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां से हम ये देख रहे हैं v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, हम इसका जब वेलोसिटी और पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, कुछ इस टाइप को बनाएगा। u यहाँ पे है एक्सेलरेशन, v t, ये भी है। ये जो होगा v माइनस यू, हम एक्चुअली जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 1/2 इंटू v माइनस यू इंटू टी प्लस u इंटू टी, ये होगा ना हाफ, ये एरिया ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगुलर का एरिया। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, v प्लस u अपॉन 2 होल टी। हम v का वैल्यू u प्लस ए टी यहां पे पुट करेंगे, x क्या निकल जाएगा, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही मेथड हो गया। दूसरी मेथड क्या है कि हम कैलकुलस का मेथड से भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड लेकर के। यहां से आपका निकल जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 ए टी स्क्वायर। हाँ, क्लियर है कि नहीं? है ना? चलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है। नो, हम यहां से देखें हैं x बराबर v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, है ना जी। हम यहां से t की वैल्यू को v माइनस यू अपॉन ए कर देते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से हम t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं ना। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं t की वैल्यू, यहां से x क्या निकल जाएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए टू 2, ये क्या निकल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये सब जो फॉर्मूला है
जो निकल के आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू वी टी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको हमेशा टंग पे होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा कि जो एक्सेलरेशन और टाइम का जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम विल गिव, यहाँ से हम डीवी को एक्सेलरेट कीजिए ना, ये क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी, तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम विल गिव वेलोसिटी। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम विल गिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड टाइम विल गिव वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है, ये सब क्लियर है। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ केसेस इसका भी देखेंगे, हम जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखे थे एट अ बॉडी, कुछ कुछ केसेस लेकर के हम इस केसेस में भी देखेंगे। ठीक है, तो हम इस केसेस में कुछ देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, x इक्वल टू यू टी प्लस 1.2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, नाउ हम वेलोसिटी का देखते हैं पहले। जब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या हो जाएगा, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, नाउ v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ क्या होगा, मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। नाउ फॉर इनिशियल वेलोसिटी जीरो के लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए टी। ठीक है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन में क्या हो जाएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो रिटार्डेशन के केस में क्या लेंगे, इसकी ग्राफ तो सेम रहेगी। इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी u और ये रिटार्ड करेगा ऐसे करके u माइनस ए टी, रिटार्डेशन का केस हो जाएगा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम ग्राफ देखते हैं। फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी body will move with initial velocity v, acceleration will be zero, पोजिशन और टाइम का ग्राफ देखेंगे तो। ठीक है, एक्सेलरेटिंग, इसकी ग्राफ क्या होगी, इस तरीके की होगी, दिस इज फॉर द जी टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बॉडी ये क्या है कि एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। ठीक है, फॉर रिटार्डिंग बॉडी के लिए ये जो जी ये क्या है माइनस होगा, तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे करके बनेगा, एक्स टी का ग्राफ यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना जी। हाँ, ठीक है। नो, हम ये जो टाइम और पोजीशन और टाइम ग्राफ और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, हम इसको एक टेबल में हमने किया हुआ है। तो आप ये देखिए पोजीशन और टाइम ग्राफ का, जब आपका बॉडी जब रेस्ट पे है तो किसी भी टाइम पे इट्स पोजीशन विल बी एस नॉट, व्हेन इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u with initial position 0, it's a straight line with from origin। जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है विथ एक्सेलरेशन a, इसकी टाइम ग्राफ हमने भी देखा है, ये पैराबोला है विथ इंक्रीजिंग स्लोप।
ठीक है। जब व्हेन इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ सम इनिशियल पोजीशन एस, तो ये जो ग्राफ क्या है एक्चुअली ऊपर शिफ्ट किया जाता है एस नॉट यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी ग्राफ विथ विल स्टार्ट फ्रॉम एस नॉट विथ इंक्रीजिंग स्लोप। जब बॉडी रिटार्ड करेगा तो इसकी ग्राफ विल बी अ पैराबोला विथ डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। जब हम बॉडी को, अभी हम केस देखें कि बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं फ्रॉम ग्राउंड से, तो देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल कॉन्स्टेंटली एक्ट, so its graph will be parabola, ठीक है, and body will ultimately come to the ground. so और distance displacement जो होगा वो जीरो स्टार्ट करके फिर से आ जा रहा है नीचे पे, और जो टोटल टाइम होता है वो t, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? जब बॉडी जब कोई भी वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा एक्स एक्सिस पे टाइम पे, ठीक है। किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। फिर बॉडी वेलोसिटी बॉडी इज हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इट्स मूविंग विद, तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे भी दिखाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये जो दोनों केस है यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। थर्ड इज v इक्वल टू at, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये एक्चुअली v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा टाइम और वेलोसिटी और टाइम का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए ओरिजिन विथ स्लोप a, ठीक है, एंड v इक्वल टू u प्लस at, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी v, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ यूनिट u with and a straight line with slope a. when body is retarding, हमने इसका केस भी देखा है पिछले स्लाइड में, तो इसकी ग्राफ विथ स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, रिटार्डिंग स्लोप होगा। और हम ये वाला भी केस देख लेते हैं कि बॉडी को जब हम ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या है कि वो वेलोसिटी तो अपवर्ड लग रहा है, वेलोसिटी v है, u इनिशियल वेलोसिटी u है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ग्राउंड का है वो कंस्टेंटली नीचे की तरफ लेगा, तो क्या करेगा वो बॉडी को रिटार्ड करेगा। तो इनिशियल पोजीशन क्या है कि हम उसको वेलोसिटी v से फेंक रहे हैं, u से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है कि बॉडी पहले क्या करेगा, एट टाइम t पे वो रेस्ट में आएगा, ठीक है, ऊपर जाकर के, जैसे कि आप बॉल को फेंकिए ऊपर में, तो बॉल ऊपर जाता है, फिर वहां पे रेस्ट में जाता है, फिर वो नीचे गिरना शुरू होता है, तो रेस्ट में आकर के फिर वो वेलोसिटी गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये जो टाइम हो गया टाइम ऑफ एसेंट है, ये जो टाइम आता है टाइम ऑफ डिसेंट है, टोटल टाइम जो आता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? नो, हम अब एक प्रॉब्लम देखते हैं जो 2019 पेपर 2 में पूछा गया है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ x अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है और x एक्सिस में वो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ x। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम व्हेन टाइम t इक्वल टू टाउ है, तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, बोला ना, द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, कंडीशन दिया हुआ है। देखिए हमने देखा है dx अपॉन dt इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ x। हम इसको x का यहाँ पे नीचे ले आते हैं और इसको हम लिख देते हैं b dt, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये कहाँ से होगा, 0 से x और ये 0 से टाउ।
एट टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू बी टाउ। यहाँ से क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू बी टाउ अपॉन 2। तो रूट एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए बी का, v इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ से रूट एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर टाउ अपॉन 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, नीट 2020 में पूछा गया। प्रॉब्लम क्या है, अ पर्सन इज सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसिंग थ्रू द विंडो of height 1.5 meter. A person is sitting in the ground floor of a building noticing through the window of height 1.5 meter. A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. ठीक है। What is the velocity of the ball when it is at the topmost position of the window? एक्चुअली क्या है कि एक पर्सन है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है और ये सिटिंग थ्रू द विंडो, यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, और ये रूफ है एक्चुअली, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे है, विंडो पे बैठा हुआ है और यहाँ से रूफ पे एक बॉल को क्या करता है कि यहाँ पे ड्रॉप करता है बॉल को। एक्चुअली ये जो है 1.5 मीटर विंडो का हाइट है। अ पर्सन इज सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसिंग थ्रू द विंडो ऑफ a person is sitting in the ground floor of a building noticing through the window of height 1.5 meter. A ball is dropped from the roof of the building. ये जो इसको 1.5 मीटर को क्रॉस करने में, जो विंडो को क्रॉस करता है, वो कितना में करता है, 0.1 सेकेंड में। कितना में करता है, 0.1 सेकेंड में, ठीक है, ठीक है। Then what is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? तो इस पोजीशन पे जब होगा बॉल तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम यहाँ पे वेलोसिटी हम मानते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे v अटेंड किया है, तो डिस्टेंस क्या है, s इक्वल टू वी टी माइनस 1.2 प्लस, एक्चुअली वेलोसिटी भी डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रहा है। जी टी स्क्वायर 1 मीटर है, 1 मीटर है ना, ये 1.5 मीटर, ठीक है, इक्वल टू v इंटू 0.1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, 0.1 प्लस 1.2 इंटू 10 इंटू 0.1 इंटू 0.1। एक्चुअली क्या है, ये दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 100 10 10 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल जाएगा, 1.5 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.1 0.05 p इंटू 0.1, यही ना, ठीक, क्या निकल के आ जाएगा, b इक्वल टू 1.5 क्या हो जाएगा, 45 अपॉन 0.1, तो v क्या हो जाएगा, 14.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड।